نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستو اور معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تو بہت سے نبی اور انبیاء کرام کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لگ بھگ اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، اور سبوں کا مشن ایک تھا، سبوں کا پروگرام ایک تھا، سبوں کا مقصد ایک تھا، یہ کیسے دنیا میں دین قائم رہے، دین پھیلے، گھر گھر دین جائے اور سارے لوگ اللہ کو ماننے والے بن جائیں۔ میرے دوستو، اسی طرح اللہ نے ان انبیاء کرام سے بڑے امتحانات لیے، بڑے بڑے امتحانات میں اللہ نے ان سبوں کو مبتلا کیا اور آزمائش اللہ نے کیا۔ ہر طرح سے انبیاء کرام الحمدللہ پورا اتر کر کے اللہ کے سامنے دکھاتے رہے۔ انہی میں سے ایک نبی ہے جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیوں کہ جتنے سارے نبی آئے بنی اسرائیل میں سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی نسل سے ہوتے ہوئے آئے، کیونکہ اس ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے دیے تھے، اور ایک بیٹے جو تھے انہی کے سارے نسل اور خیر و خاندان کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑا سخت امتحانات میں اللہ نے مبتلا کیا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی آل و اولاد نہیں تھی، آپ بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے، آپ کی عمر لگ بھگ 90 پار، لگ بھگ 95 کے آس پاس میں آپ کی عمر پہنچ چکی تھی۔ میرے دوستو، آپ نے اس بڑھاپے میں اللہ سے آپ نے دعا کیا کہ اے اللہ، اے میرے خدا، تو جانتا ہے کہ مجھے کوئی آل و اولاد نہیں ہے، کوئی ایک نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بدن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، بیٹا آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے کہ اللہ نے میری دعاؤں کو سن لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم، ہم آپ کو بیٹا تو دیں گے لیکن حلیم اور بردبار بھی دیں گے، اور یاد رکھیے بہت سخت امتحانات ملیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا اسماعیل علیہ السلام اللہ نے ان کو عطا فرما دیا۔ دنیا میں اسماعیل علیہ السلام آ گئے، اور اب پچھلے جو امتحانات گزرے تھے اس سے اور زیادہ سخت امتحانات کے وقت اب آ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اللہ نے کہا ابراہیم، ان ماں بیٹے کو لے جا کر کے ایک ایسے بیابان جنگل میں چھوڑاؤ جہاں نہ دانا ہو نہ پانی، نہ چرند ہو نہ پرند، پوری چٹیر میدان ہو، جنگل جھاڑ ہو، ان دونوں کو وہاں چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کچھ کھجور اور کچھ پانی لے کر آپ روانہ ہو گئے۔ آپ چلتے چلتے اس مقام پہ پہنچے جسے قرآن نے وادی غیر ذی زرع کے نام سے یاد کیا۔ جب اس جگہ پہ آپ پہنچے اور بیوی بچوں کو آپ نے چھوڑ دیا، وہاں پہ آپ نے اپنے بیوی بچوں کو اتار دیا، اور اتار کر کے جب چلنے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے آپ کے دامن کو پکڑ لی اور کہنے لگی اے میاں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس بیابان وادی میں مجھے چھوڑ کر کس کے سہارے جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہیں، رو رہے ہیں، ننھے منھے ہیں، گود میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں بول رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، چونکہ بیٹا اور بیوی سے جدا ہو رہے ہیں۔ وہ بیٹا جس کو آپ نے بڑھاپے میں مانگا تھا، بڑھاپے کا سرمایہ تھا، وہ آپ کے مشن کا باغ ڈور سنبھالنے والا تھا، اور خاندان ابراہیمی کا ایک تنہا روشن چراغ تھا، جسے آج آپ کو جنگل میں چھوڑ کر آنا ہے۔ حضرت ہاجرہ پوچھتی ہے کیا اللہ کا یہی حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ کا یہی حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ بھی تو نبی کی بیوی تھی، وہ بزرگ خاتون تھی، اتنا سنتے ہی ابراہیم علیہ السلام کے دامن کو چھوڑ دی اور کہنے لگی میاں جائیے جائیے،
अरे जिस अल्लाह ने आपको बचपन में नमरूद की आग में आपका हिफाजत किया, वही अल्लाह इंशाअल्लाह इस जंगल में हमारी भी हिफाजत फरमाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में छोड़कर चले आए। हज़रत हाजरा इस्माइल सलाम को लेकर रहने लगी। मेरे दोस्तों, जो खजूर और पानी लेकर गए थे, खाने पीने में अब तक खर्च होता रहा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास लग गई। आप प्यास से तड़पने लगे, रोने और चिल्लाने लगे। हज़रत हाजरा का दिल माँ का दिल था। आप परेशान हो गई, सोची मेरे बेटे को क्या पिलाए, पानी कहाँ से लाए। आप इधर से उधर भाग दौड़ करने लगी। वह चटियल मैदान, वह बालू का रेत, रेगिस्तान, आप जब कहीं देखती थी तो दूर बालू चमकता हुआ नजर आता। आप दौड़ती और भागती वहाँ जाती थी ताकि शायद पानी है, लेकिन जाती तो कुछ नहीं मिलता। मायूसी हाथ आती, फिर बच्चे का ख्याल आता। आप दौड़ती इस्माइल सलाम के पास में आती। कभी ख्याल आता तो आप सफ़र नामी पहाड़ पर चढ़ गई कि इसके बुलंदी से कहीं पानी दिखाई दे, नहीं नजर आया। फिर आप दौड़ करके मरवा पहाड़ी पर चढ़ गई। ये हो सकता है कहीं उसके घाटी से कहीं कोई नजर आ जाए, लेकिन कुछ पानी नजर नहीं आया। फिर बच्चे का याद आता, दौड़ करके इस्माइल सलाम के पास आती। सोचिए, एक माँ का दिल था, जो बुढ़ापे में एक बच्चा पैदा हुआ था, वो बच्चा पानी के लिए तड़प रहा है, पानी नहीं है। माँ के दिल पे क्या गुजर रही होगी। मेरे दोस्तों, माँ तड़पती है, दौड़ती है, भागती है, यहाँ से वहाँ जाती है, परेशान होती है। हजरत हाजरा 7 मरतबा सफ़ा और मरवा पहाड़ी पर चढ़ी और उतरी। अल्लाह को याद इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने हमेशा के लिए हज में इसको शामिल फरमा दिया। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हजरत हाजरा के कानों तक ये आवाज़ पहुँचाई, अरे हाजरा, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब तड़पने की ज़रूरत नहीं है, जाओ हमने इस्माइल के कदमों में पानी का नज़्म करो। हजरत हाजरा दौड़ती हुई आती है तो इस्माइल अलैहिस्सलाम जहाँ पे एड़ी रगड़ रहे थे, उसी जगह से सर्द और शेरी मीठे पानी का चश्मा बह रहा था। हजरत हाजरा उसको चारों तरफ से बेड़ बांधी, उसको गेड़ दी और कहने लगी, ज़मज़म ठहर जा, ठहर जा। मेरे दोस्तों, यही वह ज़मज़म है जिससे आज हम और आप पीते हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि ज़मज़म में हर बीमारियों से शिफा है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला पूरे उम्मत मुस्लिमा के तरफ से हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो रहे हैं, होशियार हो रहे हैं, माँ बाप के कामों में हाथ बटाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ जाते हैं और देखते हैं बेटा अब बड़ा होने लगा, बेटा अब जवानी के दहलीज पे कदम रखने जा रहा है। लेकिन अल्लाह को तो कुछ और ही हुक्म था। अल्लाह ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ख्वाब में ये हुक्म दिया कि इब्राहीम, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारा, सबसे ज़्यादा जो अजीज़ चीज़ है, मेरे राह में कुर्बान करो। तुम अपने बेटे को मेरे राह में ज़बह कर दो। अल्लाहु अकबर। ज़रा सोचिए मेरे दोस्तों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल पे क्या गुजरा होगा कि वह बाप जो बुढ़ापे में रोते रोते अल्लाह से एक बेटा मांगा था, उस बेटे को अल्लाह ने जंगल में छुड़वा दिया। जंगल में बच्चा रहा, पला बढ़ा, अब कुछ बड़ा हुआ, अब चाह रहे बेटे के साथ रहे। अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब बेटे को कुर्बान कर दो मेरे राह। मेरे दोस्तों, अल्लाह कभी अपने बंदों पे जुल्म नहीं करता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी थे, समझ गए कि ये भी अल्लाह के एक इम्तिहान है, मुझे इसमें भी पास होना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये ख्वाब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सुनाते हैं और कहते हैं, बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे अल्लाह के राह में कुर्बान कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, आपकी क्या राय है, ज़रा कुछ बताइए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अबू जान, अबू जान, इसमें क्या पूछने की बात है, इसमें पूछने की कौन सी बात आ गई। अरे आप तो नबी हैं, अल्लाह ने आपको हुक्म दिया, आप उसे कर गुजरिए। रहा मेरा मसला तो सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप करीब मुझे सब्र करने वालों में से ही पाएंगे। मेरे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये जवाब सुनकर बेटे के मुतमईन हो गए और अब जो है कि बेटे को कुर्बान करने की तैयारी होने लगी। हज़रत हाजरा एक नबी की बीवी है, जानती है
कितने मुशक्क़तों से बेटे को उन्होंने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, आज बेटा को कुर्बान भी हो जाना है। वह माँ बच्चे को तैयार करा देती है कि मेरा बेटा कुर्बान हो जाए, मुझे कोई गम नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। क्यों? अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के लिए देना है। ज़रा सोचिए मेरे दोस्तों, एक माँ के दिल पे क्या गुजर रहा होगा, एक माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी जब ये फैसले, ये हुक्म अल्लाह के आए होंगे। मेरे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर कुर्बान गाह की तरफ रवाना हो गए। आप जाने लगे, कमबख्त शैतान आकर के हज़रत हाजरा को भटकाना चाहा लेकिन नाकाम रहा। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को रास्ते में भटकाना चाहा और कहा, ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्या अल्लाह का ऐसा हुक्म होता है कि कोई बाप अपने बेटे को कुर्बान कर दे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये कमबख्त शैतान है तो मुझे इस राह में भटकाना चाहता है। आपने कंकड़ उठाया और शैतान को मार भगाया। मेरे दोस्तों, शैतान भागा, फिर आया, आपने फिर मारा। आप देखिए, हाजी लोग आज भी जाते हैं तो हाजी हजरात, हुज्जाज कराम आज भी रमई जमार करते हैं, आज भी पत्थर मारते हैं। मेरे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चाकू तेज किए, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान गाह पे लेकर के पहुंच गए। बेटे को आपने लेटा दिया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बू जान, अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बेटे की मोहब्बत में, अल्लाह के हुक्म में कहीं कोई कमी ना रह जाए। मेरे दोस्तों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आंखों पे पट्टी बांध लिए, चाकू लिए, बेटे को लेटा दिए, बेटे के गर्दन पे चाकू चलाने लगे। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, जरा सोचिए, समुंदरों ने मौज मारना छोड़ दिया, हवाओं ने चलना बंद कर दिया, कलियों ने चहचहाना छोड़ दिया, फूलों ने फुलाना छोड़ दिया, खुशबू देना बंद कर दिया। आसमान पे पूरे फरिश्ते हंगामा मचा दिए, पूरी दुनिया ठहर गई, पूरी दुनिया सहम गई, पूरी दुनिया कांप गई कि आज अल्लाह का ये क्या हुक्म हो रहा है। फरिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह, ये तेरे कैसा हुक्म है कि आज एक बाप अपने बेटे को कुर्बान कर रहा है। अल्लाह ने फौरन जन्नत से जो है कि अल्लाह ने दुम्बे को भेजा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम दुम्बा ला करके इस्माइल अलैहिस्सलाम के सामने रख दिए, बेटे को हटा दिए, चाकू जो है कि दुम्बे के गर्दन पे चली। मेरे दोस्तों, उस वक्त से जो अल्लाह ने ये कुर्बानी करने का जो हुक्म दिया, मेरे दोस्तों ज़रा सोचिए, एक बाप अपने बेटे को कुर्बान करने को तैयार है। हम सब भी मुसलमान हैं, हम सब ईमान वाले हैं, हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, हम अपने नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, सारे अंबिया किराम को मानने वाले हैं। और आज हमें कुर्बानी करना है तो हम पैसे देखते हैं। मेरे दोस्तों, अपनी आलो औलाद, जान माल, पूरी चीज़ें दुनिया में, हर चीज़ अल्लाह के राह में लुटाने को हम तैयार रहें। मेरे दोस्तों, कुर्बानी की सबूत यहाँ से मिलती है। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, अरे अल्लाह के रसूल, ये कुर्बानी क्या है? तो मेरे रसूल ने फरमाया, ये सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो मेरे दोस्तों, हर आदमी कोशिश करे कि कुर्बानी किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, घर वालों की तरफ से किया जाए, माँ बाप की तरफ से किया जाए, गरीब मिस्किन की तरफ से किया जाए। अल्लाह ताला हम सबों को कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबों को इन चंद बातों पर अमल की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।